سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے. آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے. آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے. اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لی. آپ راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے. وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر. وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا. ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا. آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا. کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا. اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے. عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے. اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر. پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک. پھر وہاں سے دلی تشریف لائے. یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا. تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث سے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا، کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں
जैसे एक ज्योतिष थी, इल्म नुजूम की माहिर, उसने काफी साल पहले ही ये सारी चीजें अंदाजा लगा लिया और कहा कि अजमेर में एक दुर्वेश आने वाला है जिसकी वजह से हमारी सल्तनत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी। तो जब उस खातून ने, उस औरत ने ये बात कही, तो फिर उसके बाद हुआ ये कि उस दुर्वेश के न आने के लिए क्या क्या किया गया जानते आप? न आने के लिए ऐलान हुआ था तारागढ़ की पहाड़ियों से, जो बड़े मंदिर हैं, कहा गया कि जितने आसपास बड़े बड़े मंदिर हैं वहां के सब महंत और बड़े बड़े जो पुजारी हैं वो आ जाएं। और आग हवन किया गया। इतनी बड़ी आग लगाई गई थी कि आसमान तक आग पहुंच रही थी। सारे मंदिरों में उस दिन आवाज गूंजने लगी। इस बुनियाद पर हवन किया गया था कि कोई दुर्वेश ना आने पाए, कोई यहां पर ना आने पाए, जिसके मुतालिक राजमाता ने अपने इल्म के मुताबिक देख ली। फिर भी उनको बेकरारी हुई। उसके बाद फिर क्या किया, भूटान का एक और, भूटान जो आज भी एक छोटी सी कंट्री है, वहां से जादूगरी बड़ी मशहूर थी। एक जादूगर को जो बड़ा मशहूर था उसे लाया गया और उस राजमाता ने कहा कि मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक ऐसी ऐसी चीज देखी है कि कोई दुर्वेश आ रहा है हिंद में, है हमारी धरती पर, और उससे हमें खतरा लायक है। क्या तू वो बता सकता है कि वो कहां है, कैसा है, कौन है? उस जादूगर ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू की और उसके बाद 4 मुसव्विर जो आर्टिस्ट थे उनको करीब बुलाया और उसके बाद उनके सामने पानी रख करके मंत्र ऐसे पढ़े कि उस पानी में सरकार गरीब नवाज की पूरी तस्वीर आई। ये जादू और कहानत के जरिए से उन लोगों ने यहां तक कर लिया और उन मुसव्विरों ने उसको देख करके तस्वीर भी निकाल ली और फिर फैला दिया कि जो भी इस तरह के दुर्वेश को देखे उसको हमें बता दे, इसका आता पता, ये कहां रहता है, क्या है। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि अजमेर से जासूस भी निकले हर जगह के लिए। एक बहुत बड़ा उनका जासूस था राम प्रकाश, ये गया ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया मुल्तान में जहां सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। वो अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, अमामा पहना, दाढ़ी रखा और नमाजों में शरीक होता रहा और काफी दिनों तक तलाश जुस्तजू के बाद उसे पता चला कि इस शक्ल वाले बुजुर्ग यही हैं। वहां खानका में हाजिर हुआ सरकार गरीब नवाज के, सुबह शाम आता रहा। एक दिन वो अकेला पा करके हमला करना चाहता था। उसके जुब्बे के अंदर खंजर छुपा ही रहता था। वो मौके की तलाश में होता कि मैं ये काम तमाम कर दूं और राजा पृथ्वीराज से ढेरों सारा इनाम हासिल कर दूं। तो राम प्रकाश इस नीयत से कई दिन तक मुल्तान में ठहरा रहा, लेकिन जिस दिन उसे मौका मिला गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने का, उस वक्त रात हो चुकी थी, आधी रात। वो सोचा कि खीमे में वो अकेले होंगे, कोई नहीं। तो जैसे ही दाखिल हुआ सरकार गरीब नवाज मुसल्ले पर बैठे हुए बेदार थे। आते ही वो बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े अमामे वाला कदम बूसी करते हुए आया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके पूछा, राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? हैं राम प्रकाश क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई और सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तकरीबन 12 दिन हो गए तुम्हें यहां आए और अब तक तुमने मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जुमलों पर जुमले सरकार गरीब नवाज के जब पढ़ते रहे, आखिर में आपने फरमाया, अच्छा चलो कपकपी छोड़ दो, जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा कर दो, जिस काम की गरज से तुम आए थे वो काम तो पूरा कर दो। जुब्बे से उसने अपना खंजर निकाला और कदमों पर रखा और कहा, मैंने बड़ी जिंदगी जादू, कहानत, ज्योतिषों के साथ गुजारी, मगर ये जमाल गरीब नवाज का आज तक मैंने कभी नहीं देखा, जिसका दिल भी हसीन हो और चेहरा भी हसीन हो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदमों पर गिरकर वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद आपने नाम जियाउर रहमान रखा। जियाउर रहमान और वही शख्स है जो अजमेर मोहल्ला तक लाने में सरकार गरीब नवाज का हम सफर और साथी रहा। ये मेरे मौला की हिकमतें हैं, हर दुश्मन के मुंह को मोड़ता है और अपने दीन की खिदमत पे लगाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। कभी रब तबारक व तआला अपने हरम पाक की हिफाजत उन लोगों से करता है जो हरम को ढाने की कोशिश करते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन करके पूरे सफर में रहा कि आप पर जान निछावर करता था जो जासूसी के लिए आया। और इधर अजमेर से हुआ यह था कि राज पृथ्वीराज ने,
पृथ्वीराज ने ऐलान किया था जितनी चौकियां हैं सरहद पर सब पर यह तस्वीर दी जाए और सख्त नाकाबंदी की जाए कि कोई दुर्वेश आने ना पाए, इस शक्ल वाला कोई अंदर आने ना पाए। तो सब जगह चौकियां लगाई गई थी। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लाहौर से निकलकर तशरीफ ला रहे थे, वो पंजाब का रास्ता था, अमृतसर का, भटिंडा, पटियाला, ये रास्ते से होते हुए आप सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। तो जियाउर रहमान ने पहले ही बताया कि सरकार हमारे दाखिले का कोई रास्ता पृथ्वीराज ने छोड़ा नहीं, हर जगह सख्त चौकियां हैं, कोई भी रास्ता अंदर दाखिल होने का नहीं है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए जियाउर रहमान, अब तो कुफरिस्तान में नहीं, अब तो इस्लाम में है। अकीदा ये रख, रास्ते बादशाह नहीं बनाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। आपने आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, तुझे मालूम है कुरान में अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इस आयत करीमा को पढ़ करके आपने कंकरियां उछाली और कहा, चलो बताओ हमें कौन सी चौकी बंद है और कौन सा नाका बंद है। सरकार गरीब नवाज के साथ उस वक्त चंद फकीरों की जमात थी, आप उनके साथ तशरीफ ले आए। जिस चौकी से गुजरते थे जियाउर रहमान कहता है मैं कांपता था, लोग यहां पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, न एक फौजी देखता है, न एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में बला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात, भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी
और यहाँ कोहराम मचा हुआ था, ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम दरवाजों को फलानते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई वो एक दो नहीं, बहुत सारी। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहां पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे। गुफ्त है वो गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो उसके बाद फिर आपकी बारगाह में आकर लोगों ने माफी तलाफी की। लोगों को खबर हो गई कि इस दुर्वेश की ताकत मामूली नहीं है, और ऊंटों को आपने उठने का हुक्म दिया तो दोबारा उठाए गए। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो ये अपनी बातिनी कुव्वत का इस्तेमाल करता वही मैं करता हूं। तो वहां पर मौजूद जो सबसे बड़ा जादूगर था उनका, अजय पाल जोगी, उसे बुलाया गया। बड़े इनामात इकरामात सारी चीजों का ऐलान, और उसके साथ एक बड़ी फौज आई। अब ये जो मुकाबला हुआ जादू का, एक जादू का और एक अल्लाह के वली का। वली की करामत होती है, सहर और शौबदाबाजी नहीं होती। अजय पाल जोगी ने आग फेंकना शुरू किया, लेकिन उनमें से आग की एक चिंगारी भी गरीब नवाज के जुब्बे को नहीं जला सकी, इसलिए कि वो झूठी आग थी। जादू की नजरबंदी हो सकती है। पत्थर फेंकने की कोशिश किया, आपने हिसार फरमा लिया था, अपने इर्द गिर्द घेरा बनाया। आप और आपके मुरीदीन थे, एक पत्थर भी उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता। अल्लाह जिसकी मदद फरमा है मेरे अजीजों, उसने अपनी ताकत और कुव्वत से हवा में उड़ने का अमल दिखाया। हवा में उड़ने का अमल, सरकार गरीब नवाज की लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, चप्पल नालें, आपने उसे हुक्म दिया और खड़ाऊं ऊपर उड़ी और उसके सर को मारते हुए नीचे ले आई। अभी आखिरी बात थी, उसने हर तरह के हरबे अपना कर देख लिए। उसके बाद उसे पता चल गया जादू का मुकाबला जब जादू से होता है तो एक से बढ़कर एक जादू दिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहां जादू का मुकाबला जादू से नहीं अल्लाह के वली से है। और करामतें हैं जादू को तो तहस नहस कर देती हैं। अजय पाल जोगी थक हार करके कहा, मैं हिंद का सबसे बड़ा जादूगर होने का फख्र रखता था, मगर तुम्हारे जैसी ताकत मैंने आज तक नहीं देखी, और सबके सामने तुम्हारी चप्पलों ने मुझे नीचे उतारा है। तो फिर अगर गरीब नवाज का हाथ पड़े तो पता नहीं कहां तक चले जाए, पैर पड़े तो पता नहीं तहतो सरा में पहुंच जाए। उसने उसी वक्त सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शरफ़े इस्लाम से वाबस्ता हुआ और बैत भी किया। आपने उसका नाम अब्दुल्लाह भी रखा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबिल में जो आए और वो सब दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। इन तमाम वाक़या से मुझे एक बात समझ में आती है, अताए रसूल का लक़ब बिल्कुल परफेक्ट है सरकार गरीब नवाज की शान के लिए, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं, औलाद में से भी हैं, और आलिम होने के एतबार से नायब रसूल भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिस तरह दुश्मन आते मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन अखलाक रसूल देखकर वो मुतासिर हो जाते, इस्लाम में आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ये अता गरीब नवाज को भी अता की थी, जो भी दुश्मन आता था वो आपका मुरीद भी हो जाता। यहां तक कि औरतें भी आई बहकाने के लिए गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, कई कई दिन तक आती रही। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी इस्लाम में दाखिल किया। सब वहां के अना सागर का पानी बंद किया गया, रास्ते रोके गए। ये सारी तकलीफें जो मैंने अर्ज किया,
इस्लाम की शौकत को रोकने के लिए, इस्लाम की बढ़ती हुई तवानाई और कुव्वत को रोकने के लिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पृथ्वीराज हमारी मस्जिदों को रोकता है या हमारे मसाजिद और मनाबिर और माबिद के लिए रोड़े अटकाता है, तो डरने की बात नहीं। जो गरीब नवाज की कौम हिंद में आबाद है, इंशाअल्लाह अज़ीज, जैसे अजमेर मोहल्ला में मेरे मौला ने मदद फरमाई थी हिंद के गरीब नवाज के मुरीदीन की, आज भी मौला वैसी मदद नाजिल फरमाएगा। शर्त यह है कि ये हिंदी मुसलमान सरकार गरीब नवाज के मिशन पर तो आ जाए, आप अपने मिशन पर आ जाए, आप अपनी तवानाई और कुव्वत यहां पर दुनिया हासिल करने के लिए, अय्याशी के लिए ना लगाओ। ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हें तो एक कोई हुस्न वाली परी दिखा दी जाए, ईमान खराब हो जाए, लोग दौलत दिखा दें तो तुम अपना सारा मनसब छोड़कर उधर चले जाओ। एक बात याद रख लेना कि आप सरकार गरीब नवाज के आशिक हो और उनके सच्चे पैरोकार हो, तो तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि दुनिया मुझे हुस्न दिखाएगी, जमाल दिखाएगी या मालो दौलत दिखाएगी, लेकिन मेरा अकीदा यह है, जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दे दो, मगर ये हम से कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान, तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने यह लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो और औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में है, हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजा ने गिरामी वकार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपको मालूम है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब है आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे, यही दो चीजें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह ये जो आपको लक़ब दिया गया है, उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपनी अपनी मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो। एक बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले के नीचे से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले और पेश किया कि मैं जब कभी अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालूं, अल्लाह ताला मुझे सोने और जवाहरात अता फरमाता है। उसमें ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी थे, वो अपना जो असा रखते थे, असे को उन्होंने यूं मारा तो पूरा असा जवाहरात का यानी चांदी का बन गया और उस पर किस्म किस्म के जवाहरात थे। और एक बुजुर्ग ने मुसल्ले को कहा कि ऊपर उठ जा, तो बगैर किसी सहारे के वो हवा में मौजूद था। इसी असना में सरकार गरीब नवाज खामोश बैठे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम भी अपनी कुछ चीजें बताओ। तो बड़े इसरार के बाद आपने अपने जुब्बे में हाथ डाला और गरम गरम दो रोटियां निकाल कर रख दी, पकी हुई दो रोटियां थी। तो दूसरे औलिया कामिलीन ने अपने बड़े बड़े जो करामात दिखाए, किसी ने सोने, जवाहरात, चांदी और बहुत सारी चीजें, उसमें रोटियों की क्या कीमत, तो सब वहां रखे हुए थे, सोने, जवाहरात, चांदियां, उसमें दो रोटियां भी रखी हुई थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में
इन दुर्वेशों के दरमियान एक फकीर आया और कहा, है अल्लाह वालों की मजलिस, ऐ अल्लाह वालों, तुम्हारे घर से और तुम्हारे दरबार से कोई मंगता मायूस नहीं जाता, बड़ा भूखा हूं, बहुत देर का भूखा हूं, मुझे तुम लोग कुछ खिला दो। उस फकीर को बुलाया, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उससे वो सोने के सिक्के सब दे दिए, कहा ले खा ले। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, चांदी दे दिया, इसको खा ले पेट भर जाएगा। उसने कहा नहीं, वो जो आपके सामने 2 रोटियां रखी हैं वो मुझे चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी, और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा, तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा, बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मोहल्ला से वाबस्ता है। ए मुसलमानों, आखिरी में आप सबको ये नसीहत करना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ साधु संत पंडित जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और इंतजार करता हूं चंद दिनों के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पृथ्वीराज का हुआ था, या तो फिर इंतजार करो कि कोई खड़ाऊ आए जो तुम्हारे सरों पर भी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो उन्हें हिदायत दे या तो फिर हिलाक फरमाए। जो गरीब नवाज की शान में हर्जा सराई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फरमाया, मन आदा अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। जिसकी हिम्मत है वो अल्लाह से जंग करे। जिन्होंने छेड़ा है गरीब नवाज को वो दर हकीकत अल्लाह से जंग को छेड़ चुके हैं। इंतजार करना मेरे अजीजों, बड़ी बुरी मौत वो मारे जाएंगे। लेकिन मैं अपने माशरे में भी ये कहूंगा, कोई बदअकीदा आकर के शान गरीब नवाज में गुस्ताखियां करता है तो फौरन अपनी मजलिसों से उसे पाक कर दो, या अपनी मजलिसें उससे पाक करो और उठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ हो सकती है। औलिया की दुश्मनी और गुस्ताखी में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर उनकी गुलामी में ही जीते रहना। इसलिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक बार दिल्ली में आप अपनी खानका में एक औरत आई और हमला थी, सीधे इल्जाम लगाया। बादशाह अल्तमश था उस जमाने में, शमसुद्दीन अल्तमश, उसके पास आकर कहती है औरत कि मुझे पाक कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। कहा किससे निकाह कराएं? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, इन्होंने मेरे साथ ज़िना किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी तोहमत, पेट में बच्चा है और आकर औरत कहती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बच्चा, ये भी उसका बच्चे का बाप है, निकाह करा दीजिए। तो बादशाह सख्ते में रह गया, हैरत में रह गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, आप पसीना पसीना हो गए, आप इसी असना में आंख बंद करके अपने पीरो मुर्शिद की तरफ लौ लगाते हैं जो अजमेर मोहल्ला में थे। सरकार गरीब नवाज की तरफ लौ लगाया और कहा, ऐ गरीब नवाज, तुम्हारे एक गुलाम की इज्जत पर आज बात आ गई है। आपने आंख खोला, दरबार अदालत में बादशाह भी है, औरत भी है, आप भी हैं। आंख खोलते ही देखा सरकार गरीब नवाज अदालत में मौजूद है, वहां मौजूद थे। लोगों ने आपकी दस्तबोसी की, कदम बोसी की, और बादशाह खड़ा हो गया। कहा सुल्तानुल औलिया आप कैसे तशरीफ लाए? कहा मुझे मेरे बच्चे ने याद किया, मेरे मुरीद ने याद किया, इसलिए मैं आ गया। बता कुतुबुद्दीन तेरे साथ क्या हुआ? कहा यह औरत मुझ पर इल्जाम लगाती है। सरकार गरीब नवाज ने उस खातून को करीब किया, कोई सवाल जवाब नहीं, बल्कि बादशाह अल्तमश से कहा, मैं तुझे गवाही दिलाता हूं, इस औरत के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा है उसका बाप कौन है? गरीब नवाज ने दूर से मुखातब करके कहा, औरत नहीं, ना ही कोई दूसरा, ऐ पेट में मौजूद बच्चे, तू बोल तेरा बाप कौन है? पेट के अंदर से आवाज गूंजने लगी। अदालत में सारे लोगों ने सुना, वो बच्चा पुकार रहा था, मेरी मां फाहिशा है, मेरी मां सानिया है, फला से इसने बदकारी की है। कुतुब साहब ने कभी आज तक इसके ऊपर नजर तक नहीं दौड़ाई। वो औरत शराबोर हो गई पसीने में, फिर रोकर कहने लगी, चंद लोगों ने
पैसे देकर के मुझे इल्जाम लगाने के लिए भेजा था, बादशाह ने सख्त सरजनिश की। मैं इस वाक़े को इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कुतुब साहब जो खुद वली कामिल हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक वली कामिल का नाम है, लेकिन जब उनकी इज्जत पर भी बात आ गई, उन्होंने दरबार गरीब नवाज में लौ लगाया और फिर मदद भी आई। इसीलिए मुसलमानों, आज मैं ये कहूंगा, अगर हमारी इज्जत पर बात आ जाए, अगर हमारे ऊपर कभी मामलात आ जाए, एक बार बंद आंखों से अजमेर की तरफ लौ लगाओ और कहो, ऐ गरीब नवाज, मैं किसी मोदी की सरजमीन पर नहीं रहता, मैं गरीब नवाज की सल्तनत में रहता हूं। ऐ बादशाह आप है मेरे, सरकार आप है मेरे, अगर मेरी इज्जत पर बात आ गई है तो मेरी मदद आपके जरिए से होगी।